On 1/4/2016, Ranjana, Susma and Joseph introduced a capital of rupees 1,28,000, 96,000 and 80,000 respectively and commenced a business. Susma has withdrawn rupees 8,000 on 1st October 2016 while Ranjana has withdrawn rupees 1,200 at the end of each month. As per the partnership deed, number 1, provide 5% per annum interest on capital and charge 10% per annum interest on drawing. Number 2, profit loss sharing ratio among partners is 5:3:2. After incorporation of the above mentioned adjustment, 2% bonus is to be paid to Ranjana from the surplus of the profit. On 31st March 2017, partners have decided that total capital of the firm after the incorporation of the above mentioned adjustment will be of rupees 3 lakhs. Their credit balance of the capital accounts will be in the ratio of 2:2:1. For the adjustment, necessary amount will be introduced or withdrawn by the partners. Net loss of the firm for the year ending on 31st March 2017 was of rupees 45,860. From the above information, prepare profit and loss appropriation account and capital accounts and drawing accounts. Today, this is the 4th lecture and in my opinion, this is the most important example for 12th standard regarding partners profit and loss appropriation account and partners capital account. So let's see the example. First I read the example. On 1/4/2016, Ranjana, Susma and Joseph introduced a capital of rupees 1,28,000, 96,000 and 80,000 respectively. In previous lecture I have mentioned that you have to write down capital and drawing directly from the given example by balance brought down. Ranjana's capital is 1,28,000, 96,000 and 80,000. Two things you have to directly write from the example. One is capital and another is drawing directly from the example. And all other things you have to take according to the whatever given in the example. And commence a business. Susma has withdrawn rupees 8,000 on 1st October 2016. Who has withdrawn? Susma. So we are write amount in the column of Susma, that is 8,000 on 1/10/2016 to drawing. Right? While Ranjana has withdrawn rupees 1,200 at the end of each month. Now every month in the end she withdraws how much? 1,200 rupees. So 1,200 rupees for 12 months. 12 12s are 144. So total drawing is how much? And at the end of each month. Now here is the question. Now 1/10/2016 to 31st March 2017. How many months? 10, 11, 12, 1, 2, 3. 6 months. Right? Now we have to take into account the drawing. Right? So who has withdrawn the amount? 1,200 at the end of each. Ranjana has withdrawn rupees 1,200 at the end of each month. So each month, here each month means 12 into 12. So 14,400 will be the drawing of who? Ranjana. Right? Now, as per the partnership deed, provide 5% per annum interest on capital. 5% interest on capital. Now see, beginning capital. Ranjana 1,28,000, Susma 96,000 and Joseph 80,000. Now how much interest you have to charge? As per the partnership deed, provide 5% interest per annum on capital. 5%. 5%. 5%. You can use the calculator.
So it comes to 4,000. It comes to 4,800, and here 6,400. So this is the interest on capital. So interest on capital, 2. Interest on capital, Ranjana, Susma, Joseph. How much? 6,400, 4,800, 4,000. So it comes to 0, 0, 8 plus 4, 12, remainder 1, 10, 4, 14. 15,200 will be the amount of interest on capital. Right? Now, I am writing little down interest on capital. Why? I am mentioning you later on. Ranjana, Susma, and Joseph. How much? 6,400, 4,800 and 4,000. Total amounts to 0, 0, 12, 15,200. Why I have left one line blank? Because at this particular point of time, I don't know whether there is a profit or loss from the profit and loss account. So after when we read, we might have completed here, then you cannot write a net loss here. You have a space open to write down the profit if profit is there. But after completing all these things, if I come to know that there is a net loss and I have written interest on capital in the first line, then there is no other way around to write down in the below the capital, but it is not the proper way, right way as per accountancy. So you have to keep one line blank irrespective of fact whether profit or loss. तो आपको एक लाइन क्या करनी है? छोड़ देनी है. क्यों? क्योंकि हमको अभी पता नहीं है कि हमारा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है. नेट प्रॉफिट होगा तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और नेट लॉस होगा तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे. इसलिए अभी पता नहीं है, इसलिए मैं लाइन क्या कर रहा हूँ? ब्लैंक छोड़ रहा हूँ. जैसे फ्यूचर में जो भी आया, प्रॉफिट आया तो इस साइड लिख लूंगा, लॉस आया तो मैं इस साइड लिख लूंगा. सो वी आर प्लेइंग सेफ. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, and charge interest on drawing, 10% interest on drawing. Now you know interest on drawing. Drawing कितना है लोग का? How much is the drawing? 14,400 and 8,400. Right? Now interest on drawing. Two people have drawn amount, Ranjana and Susma. Right? Ranjana has amount how much? 14,400, but fixed amount is how much? 1,200. Remember the previous lecture, when there is two situations, one partner withdraws in the beginning, some partner withdraws at the end. So at that time we have to take different amount. At that we are revising that n is equal to, आपको लेना है 6, बिफोर हो तो 6.5, आफ्टर हो तो 5.5. मतलब मिडल ऑफ द मंथ में विड्रॉ करते हैं तो 6, बिगिनिंग ऑफ द मंथ करते हैं तो 6.5, द एंड ऑफ द मंथ करते हैं तो 5.5. 12 जा 66 divided by 12. It is 72 divided by 12, and it is 78 divided by 12. Right? So here Ranjana withdraws rupees 1,200 every month. At the end of every month 1,200. So we have to take into account how much? 66 divided by 12. And interest rate is how much? 10%. So 12 gone, 12 gone, 100 gone. So which is the interest amount? How much is the interest amount? 660. Remember this table to do the example. Now Susma is directly withdrawing amount rupees 8,000. But when 1st October को उसने withdraw किया,
1 अक्टूबर को विड्रॉ किया, हमारा एंड खत्म होता है 31 मार्च को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, हाउ मच 6 मंथ्स का हमको इंटरेस्ट लेना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम, 0 कैंसिल, 6 2 जा 12, this is 40, so it comes to 400. So now by interest on drawing, why I have written in second line, you know very well. So Ranjana and Susma. Ranjana how much? 660 and this is 400. It comes to 1060. Why we have kept this line blank? To write down whether profit or loss. Next, the most important part of 12th standard. Profit sharing ratio is 5:3:2. This is the profit sharing ratio. Now, after incorporation of above mentioned adjustment, 2% bonus is to be paid to Ranjana from surplus profit. अभी देखो, रंजना को 2% बोनस देना है। कब देना है? इफ देयर इज अ सरप्लस प्रॉफिट। सरप्लस मतलब ज्यादा प्रॉफिट हो तो, सरप्लस प्रॉफिट मतलब डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास बचे तो। अभी हम एग्जांपल में देख लेते हैं कि हमको रंजना को बोनस देना है कि नहीं, तो पूरा एग्जांपल देखते हैं, बाद में हम बोनस की बात करेंगे कि पेंडिंग बोनस का हमने इफेक्ट नहीं दिया है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम देखेंगे। Partners have decided that capital of the firm after incorporation of the above adjustment will be 3 lakhs. अब एक चीज फिक्स हो गई कि क्लोजिंग कैपिटल, कौन सी कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल हमारी कितनी होनी चाहिए? सबकी मिला के 3 lakhs होनी चाहिए, राइट? 3 lakhs. Their credit balance of the capital will be in the ratio of 2:2:1. 2:2:1 मतलब 2 रंजना का, सुषमा का 2 और जोसेफ को रेशियो कितना हो जाएगा? 2:2:1 मतलब 2/5 एंड 1/5. नाउ 3 lakhs का 2/5 करो, 3 lakhs into 2/5, 5 6 30, 3 0 it comes to 1,20,000. Here 1,20,000 और यहाँ कितना हो गया? 60,000. हमको पता चल गया कि ए एग्जांपल में क्लोजिंग कैपिटल यहाँ 31 मार्च 2017 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना हो जाएगा? 1,20,000 एंड 60,000. हमको पहले से ही पता चल गया कि हमारा क्लोजिंग कैपिटल इतना होना चाहिए। अभी क्या हो सकता है, कोई पार्टनर का बैलेंस इस साइड का बढ़ जाएगा तो हम ए साइड पे लिखेंगे बाय कैश, और कोई पार्टनर का बैलेंस यहाँ बढ़ जाएगा तो इस साइड पे जो भी डिफरेंस आएगा वो हम क्या लिखेंगे? बाय कैश. कहां से पता चला? देयर कैपिटल बैलेंस ऑफ कैपिटल विल बी इन द रेशियो ऑफ 2:1, राइट? एंड जितना भी कम पड़ रहा है और ज्यादा हो रहा है, कम पड़ रहा है तो पार्टनर लेके आएगा, ज्यादा हो रहा है तो उसको फर्म क्या कर देगी? वापस दे देगी, राइट? नाउ for this adjustment necessary amount will be introduced or withdrawn by the partner. क्या लिखा है? For this adjustment मतलब this adjustment necessary amount will be taken away or introduced मतलब कम पड़ेगी तो पार्टनर्स लाएंगे, ज्यादा हो जाएगी तो लेके जाएंगे, मगर हमारा क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस कितना होना चाहिए? 3 lakhs टोटल इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. 2 + 2 + 1, 2 + 2 4 + 1 मतलब 5 रुपया होता है, तो 5 रुपये में से 2 रुपया रंजना का, 2 रुपया सुषमा का, 1 रुपया कौन लाएगा? जोसेफ लाएगा. इसी हिसाब से हमारी क्लोजिंग कैपिटल ए हो गई, राइट? नेट लॉस ऑफ द फर्म, देखो अभी क्या है? नेट लॉस. नेट लॉस मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा? इस साइड पे, डेबिट साइड पे, क्योंकि लॉस है. लॉस का क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस. तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या है हमारा? नेट लॉस. Net loss of the firm for the year ending on 31st March 17 was 45,860. कितना लॉस है हमारा? 45,860. From the above information, prepaid profit and loss account and partners capital account.
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है और पार्टनर्स की कैपिटल बनानी है। हमने क्वेश्चन मार्क करके रखा था बोनस वाला पॉइंट, याद करो। बोनस की कंडीशन क्या है? सरप्लस प्रॉफिट। अभी आप भूल जाओ सरप्लस हो कुछ नहीं, प्रॉफिट वर्ड पकड़ लिया। प्रॉफिट है तो हमको बोनस देना है। एक एग्जांपल में हमारे पास क्या है? लॉस है, मतलब उसका मतलब ये हो गया कि सुषमा और रंजना जिसको भी बोनस देना था, नाउ शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट एनी बोनस। तो बोनस का पॉइंट अभी भूल जाओ। अभी हम क्या करेंगे, पूरा एग्जांपल में देख लेते हैं, कोई चीज छूट नहीं गई है तो एक बार पूरा हम क्या कर लेंगे, पूरा एग्जांपल एक बार रीड कर लेंगे और रीड करने के बाद हमें देख लेंगे कि कुछ बाकी नहीं रह रहा है। मेरे हिसाब से तो कुछ बाकी नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, अभी सीधा टोटल करेंगे। तो टोटल किस साइड पे आएगा? ए साइड पे। क्या होगा? 6 0 6 + 5 11 61,060 61,060। उसमें से 1060 निकल गया, जो भी बाकी बचा उसको हम बोलेंगे डिविजिबल। डिविजिबल लॉस। लॉस किसके पास जाएगा? रंजना के पास जाएगा। सुषमा के पास जाएगा और तीसरा जोसेफ के पास जाएगा। अभी याद करो पहली लाइन, हम देख लेते हैं उसका पार्टनरशिप में उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। हमने लिख के रखा था कितना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 5:3:2। तो हमारा अभी पहले हम लॉस ढूंढ लेते हैं कि कितना लॉस हुआ, और जो भी लॉस हुआ वो हम 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी 61,060 में से 1060 गया तो लॉस हमारा कितना हो गया? 60,000। तो 60,000 को सुषमा, रंजना, सुषमा एंड जोसेफ कितना है? 60,000 60,000 60,000। उसको कितने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 5:3:2। सो 0 0 0 0 0 0 इट कम्स टू 12,000, इसका 18,000, इसका 30,000। लॉस कितना हुआ? रंजना को 30,000, सुषमा को 18,000 और जोसेफ को 12,000। टोटल करो एग्जैक्टली कितना होना चाहिए? 60,000। नाउ रिमेंबर द फर्स्ट सेकंड लेक्चर, क्या बताया गया था कि जितना भी अमाउंट यहाँ है डेबिट, उसको ट्रांसफर करके कहाँ ले जाना है? पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड पे। और यहाँ जो दिख रहा है क्रेडिट में वो सीधा सीधा कहाँ आएगा? डेबिट साइड पे। मगर एक चीज याद रखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट कहाँ से लाए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से लाए, मतलब उसकी दूसरी इफेक्ट हो गई। वहां डेबिट थी, क्रेडिट थी, यहाँ क्या हो गई? डेबिट, खत्म हो गया। बाकी जो एडजस्टमेंट हमने दी है उसकी एक ही इफेक्ट दी है, और आपको पता है एवरी एडजस्टमेंट हैज गॉट हाउ मेनी इफेक्ट्स? 2। तो जो हमने एडजस्टमेंट किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, डिविजिबल लॉस का, उसकी दूसरी इफेक्ट हमको देनी बाकी है। तो जो भी डेबिट है वो हम क्या करेंगे? यहाँ क्रेडिट। कौन से दिन पे? 31 मार्च 2017। ये क्या है? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सीधा यहाँ से यहाँ लिखना है 6,400, ये हो गया 4,800 और ये हो गया हमारा 4,000। इसका काम खत्म। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 31 मार्च 2017 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रंजना के बारे में 660 और इसका हो गया 400। अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखना। जोसेफ का ड्राइंग भी नहीं है तो उसके इंटरेस्ट भी नहीं है, राइट? तो ये अमाउंट हो गई। नाउ डिविजिबल लॉस, डेबिट क्रेडिट है तो कहाँ आएगा? इस साइड पे 31 मार्च 2017 टू डिविजिबल लॉस कितना है? 30,000, इसका 18,000 और इसका 60,000। ना नथिंग लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड। अभी हमको देखना है कौन सी साइड का पल्ला भार है। जो साइड टोटल ज्यादा है वो पहले करने का। तो हम क्या करेंगे? मुझे पता है ये साइड का टोटल ज्यादा है यहाँ का। यहाँ तो 1,20,000 प्लस 6 134,400 ही है। यहाँ ज्यादा है 1,20,000 30 1,50,000 1,60,000 1,64,000 1,65,060। कितना आ गया इसका टोटल? 1,65,060 ज्यादा है तो हम ये टोटल क्या रखेंगे? यहाँ 1,65,060
उसमें से ऊपर से पूरी अमाउंट क्या करेंगे हम, माइनस 6 4 8 प्लस 6 14 प्लस 1 15 रिमेन 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 1 का 1 कितना बच गया, 31,460, राइट। अभी देखते हैं इंटरेस्ट और कैपिटल, देख लेते हैं एक बार फिर से, बाद में भी देख लेंगे। 1,65,060 माइनस 1,20,000, फिर आपके पास तो कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। 0,607 37,600, उसमें से 6,400 गया, 6 10 6 6 0, यहाँ हो गया 30,660, 30,660 हमारा बैलेंस बचा। खैरिज करने में प्रॉब्लम होता है, आप कैलकुलेटर पे कर लेना एक बार तो आपको पता चल जाएगा। सेम वे यहाँ देखते हैं 96,000 प्लस 4,000, 1,02,800 होता है उसका, 1,08,800। यहाँ देखो यहाँ भी ज़्यादा हो जाता है तो हम यहाँ का टोटल ज़्यादा पहले करेंगे। 0 0 4 8 प्लस 8 16 1 1 प्लस 0 0 थर्ड वन 4 फोर्थ लाइन 8 प्लस 8 16 प्लस 2 18 1 0 0 थर्ड लाइन फोर्थ लाइन 1 2 0 8 प्लस 8 16 रिमाइंडर 1 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 1,46,400, तो हम यहाँ रख देंगे 1,46,400। यहाँ भी फिर से कर लेते हैं 1,46,400 में से 96,000 चला गया, क्या बचा 50,400, उसमें से 4,800 और निकाल दो। 0,069 कितना बच गया, 45,600 ए साइड पे बच गया। अभी यहाँ देखो इसका टोटल कितना है, यहाँ कितना है 1,20,000 और वहाँ कितना है 84,000 डिविजिबल लॉस 12,000 मिस्टेक है, 60 लिख दिया था, ये 12,000 आना चाहिए। अभी 12,000 करेंगे तो इसका टोटल कितना हो गया 72, यहाँ का टोटल क्या हो गया 84,000, यहाँ क्या हो गया हमारा 84,000, इसमें से 60,000 निकालो, 84 में से 60 गया 24 में से 12 गया, कितना बच गया 12,000। देखो हमने अभी नाम नहीं दिए, कंडीशन क्या थी कि जितनी अमाउंट कम पड़ेगी पार्टनर्स लेके आएंगे और ज्यादा होगी तो पार्टनर्स ले जाएंगे। अभी पहले हम कुछ भी बिना सोचे हम क्या कर लेंगे, यहाँ जो भी डिफरेंस आया हम क्या लिख लेंगे बाय कैश, मतलब क्रेडिट साइड आया मतलब एक कम अमाउंट पड़ी वो पार्टनर्स लेके आए, और डेबिट साइड पे लिखेंगे टू कैश, मतलब जो अमाउंट ज्यादा थी वो पार्टनर लेके गया। अभी आप टोटल कर लो तो आपका एग्जाम्पल पूरा खत्म हो गया। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट चीज थी, एक तो बोनस का पॉइंट था, मगर बोनस तभी देना था जब सरप्लस प्रॉफिट बचे। दूसरी चीज कि ये लोग की क्लोजिंग कैपिटल की इंफॉर्मेशन पहले से दे दी थी, मतलब उसका क्लोजिंग कैपिटल कितना रहेगा वो बता दिया था, टोटल 3 लाख, और उसका रेशियो भी था 2:2:1, तो 3 लाख को 2:2 में बेचा तो 1,20,000 1,20,000 है 60,000 आया। दूसरी एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इसमें ये थी कि वो क्लोजिंग कैपिटल को मेंटेन करने के लिए जो भी शॉर्ट कमिंग्स होती है, कम पड़ता है वो पुराने पार्टनर लेके आएंगे, ज्यादा होता है वो पार्टनर लेके जाएंगे। ये एग्जांपल की है इंपॉर्टेंट चीज थी। तीसरी चीज, एक पार्टनर था उसने विड्रॉ किया 1,200 रुपीज एवरी मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्या हो गया, हम ऐसा नहीं करेंगे 12 × 12 मतलब 14,400 उसने ड्रॉइंग किया, मगर जब कैलकुलेशन किया इंटरेस्ट का तो आपने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया, 1200 × 10%
इंटू 66 डिवाइडेड बाई 12 किया था ना आपने। तो क्यों ऐसा किया? क्योंकि उसी कंडीशन है, एट द एंड ऑफ द मंथ कोई पार्टनर एवरी मंथ विड्रॉ करता है तो 66 डिवाइडेड बाई 12 एन लेना है, राइट। तो उसी कंडीशन की है। दूसरा पार्टनर ने 8,000 रुपीज 1 अक्टूबर को, देखो रिवाइज करो पूरा याद आएगा, 1 अक्टूबर को लिया था। 1 अक्टूबर बताओ, अक्टूबर से मार्च कितने महीने होता है? 6 मंथ्स। तो उसका ड्रॉइंग कितना था? 8,000। कितना परसेंट? 10%। मगर उसने इंटरेस्ट कितने महीने का गिना? 6 मंथ्स का। तो इसमें कितनी चीज आ गई? एक ने हाथ बीच में विड्रॉ किया, एक ने एवरी मंथ एंड में विड्रॉ किया, कैपिटल का बैलेंस मेंटेन करना था, सब चीज इसमें इंक्लूड हो गई है। सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल फॉर 12। ये एग्जांपल कम से कम 2-3 बार आप कर लेना, जब तक पूरा समझ में ना आए तब तक बार बार एक चीज करते जाओ। न जाओ तो वीडियो को रिवाइंड करो और देखो कैसे किया गया है। और एक बार आपको पता चल गया ना, मेरी गारंटी है कि मेजॉरिटी ऑफ द एग्जांपल जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल के आपको आते हैं, वो आपको एग्जांपल आपको आएगा है। So this is the final thing for today. We'll go for the next example next time. Thank you.